This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic knowledge representation using predicate logic. So in earlier classes, we have already studied regarding the what are the various knowledge representation techniques in artificial intelligence. So particularly in artificial intelligence, we can represent the knowledge by using four techniques. First knowledge representation technique is a logical representation. Second knowledge representation technique is a semantic network representation. Third one is a frame representation, whereas fourth one is representing the knowledge with the help of production rules. So we have already discussed briefly about all these four techniques in earlier video. अगर आपको रेफर करना है इनके बारे में डिटेल्स में तो प्लीज मेरा अर्लियर वीडियो रेफर कीजिएगा. एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी हैव टू गो फॉर हाउ टू रिप्रेजेंट द नॉलेज बाय यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक. So whenever we are representing the knowledge by using logical representation, logics can be of two types. First is a propositional logic and second one is a predicate logic. तो propositional logic में generally जो कुछ भी हम represent करेंगे at that time always we have to represent everything or every fact in the form of true or false. But due to this mechanism, जब हम किसी fact को represent करेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे फैक्ट ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में रहेंगे. कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में नहीं रहेंगे. अगर हमारा फैक्ट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में अगर नहीं है तो ऐसे फैक्ट को हम प्रपोजिशनल लॉजिक के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाई प्रपोजिशनल लॉजिक इज नॉट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक इज वेरी लिमिटेड. Now we have some facts. जैसे कि पहला फैक्ट है some humans are intelligent, या फिर हमारा सेकंड फैक्ट है सचिन लाइक्स क्रिकेट. ये दोनों फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों फैक्ट हम प्रपोजिशनल लॉजिक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि प्रपोजिशनल लॉजिक में किसी पर्टिकुलर फैक्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो फैक्ट आइदर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होना चाहिए. बट ये नेचुरल सेंटेंसेस इस तरह के हैं कि इन पर्टिकुलर फैक्ट्स में either true या falseness की हम बात नहीं कर रहे हैं. And that's why if we want to represent this particular information with the help of prepositional logic, at that time prepositional logic will fail to represent this kind of information. And that's why what we have to do, if we want to increase the expressive power for our knowledge representation scheme, so at that time rather than using propositional logic, we have to go for powerful knowledge representation technique, and that is what called as predicate logic. Now we have to understand what exactly first order logic is. So first order logic is another way to knowledge representation in the artificial intelligence. It is just extension to propositional logic. Here we are trying to increase the expressive power of our knowledge representation scheme. So first order logic is sufficiently expressive to represent the natural language statements in a concise way. तो इससे पहले हमने देखा था कि प्रपोजिशनल लॉजिक के थ्रू अगर हम किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो फैक्ट इधर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होना चाहिए. बट जरूरी नहीं है कि नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रहे. रोजमर्रा की लाइफ के काफी सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स की फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में रहेंगे. और इस तरह के फैक्ट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो फॉर दैट वी हैव टू यूज मोर एक्सप्रेसिव नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम, दैट इज व्हाट अ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, या फिर जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक. नाउ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज अ पावरफुल लैंग्वेज दैट डेवलप्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन अ मोर इजी वे एंड कैन आल्सो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स. तो पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के थ्रू हम नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी हैव टू स्टडी इन डेप्थ. The first order logic does not only assume that world contains the facts like propositional logic, but also assume that following things in the world. तो particularly generally अगर हम facts के बारे में अगर represent करना चाहते हैं तो first order logic समझता है कि fact will consist of objects, fact will consist of relationships, and fact will consist of function. तो generally जो कुछ भी information हमारे पास है वो information ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रहेंगे ऐसा नहीं है. ट्रू या फॉल्स के अलावा हमारे पास जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स में हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं. और नेक्स्ट लेवल ये रहेगा कि हमारे फैक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे फैक्ट्स में कुछ रिलेशंस हो सकते हैं और हमारे फैक्ट्स में कुछ फंक्शंस हो सकते हैं. तो अभी ऑब्जेक्ट्स यानी क्या? तो ऑब्जेक्ट्स बोले तो एंटिटी,
जैसे ए, बी, पीपल, नंबर, रिलेशनशिप्स, दो अलग अलग फैक्ट के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप आपका यूनरी रिलेशनशिप हो सकता है या फिर बाइनरी रिलेशनशिप हो सकता है। एंड फंक्शन, जनरली हम किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, that operation is called as a function। तो जैसे father of या best friend या third inning या end of, all these are the various functions which will continue in our facts। तो particularly first order logic में only true या false form के अलावा objects, relationships और functions की चीजें भी हम यहाँ पे consider करते हैं। And that's why first order logic having more expressive power as compared to our propositional logic। And therefore फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में अगर किसी फैक्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करते वक्त हम नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंसेस को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज ए नेचुरल लैंग्वेज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आल्सो हैज टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ए सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। तो पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के थ्रू अगर हम किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो रिप्रेजेंट करते वक्त हमें सिंटैक्स और सेमेंटिक दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक? तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का सिंटैक्स जो रहेगा, दैट सिंटैक्स विल डिटरमाइंस व्हिच कलेक्शन ऑफ सिंबल्स इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। द बेसिक सिंटैक्टिक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और द सिंबल्स। तो पर्टिकुलरली जब कभी भी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के थ्रू किसी फैक्ट को या किसी नॉलेज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, तो बेसिक सिंटैक्टिक एलिमेंट जो रहेगा दैट विल बी द सिंबल्स। नाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट इन शॉर्ट हैंड नोटेशन इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो आगे चल के हम कुछ एग्जांपल के थ्रू स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फैक्ट दिया है तो उस फैक्ट को हम शॉर्ट हैंड में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के थ्रू अगर हमें किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हो जनरली सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंबॉलिक फॉर्म शॉर्ट हैंड तरीके से हम जनरली यूज करते हैं। नाउ here we have to understand the basic elements of first order logic। The first basic element of first order logic is a constant। तो जनरली जब कभी भी हम किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते वक्त हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स के कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए। कॉन्स्टेंट्स हमारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 2, या फिर ए बी, या फिर अमित, नागपुर, कैट। इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास आता है, तो दैट इज जनरली ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। दिस इज व्हाट द फर्स्ट बेसिक एलिमेंट। देन वी हैव सेकंड बेसिक एलिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो जनरली फैक्ट को रिप्रेजेंट करते वक्त हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अब ये वेरिएबल्स क्या है, तो मेनी टाइम्स क्या होता है कि जब हम फैक्ट्स रिप्रेजेंट करने जाएंगे, तो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करते वक्त हमारे फैक्ट्स में काफी सारे क्लासेस रहेंगे। तो फैक्ट्स में अगर काफी सारे क्लासेस रहेंगे, तो फिर उस पर्टिकुलर क्लास के एक इंस्टेंस के बारे में अगर हमें बात करना रहेगा, तो एट दैट टाइम रादर देन गोइंग फॉर वन बाय वन इंस्टेंस, उस इंस्टेंस को जनरली हम वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई वेरिएबल्स विल बी देयर। दिस इज व्हाट सेकंड बेसिक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। देन वी हैव थर्ड बेसिक एलिमेंट एज अ प्रेडिकेट्स। एंड दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारे पास कोई फैक्ट है, तो उस फैक्ट में प्रेडिकेट क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और प्रेडिकेट के थ्रू हमें नॉलेज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ब्रदर, फादर, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की चीजें अगर आती है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रेडिकेट। देन फोर्थ बेसिक एलिमेंट इज फंक्शन। तो जनरली क्या क्या फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शंस जनरली आएंगे। जैसे किसी चीज का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर रूट, या कोई किसी के लेफ्ट में है तो लेफ्ट ऑफ, या किसी का राइट लेग कौन सा है तो राइट लेग ऑफ, तो स्क्वायर रूट, लेफ्ट ऑफ, या फिर राइट लेग ऑफ, ऑल दीज आर ट्रीटेड एज अ फंक्शन। देन वी हैव फिफ्थ बेसिक एलिमेंट एज कनेक्टिव। तो जनरली अलग अलग कॉन्स्टेंट्स को या अलग अलग प्रेडिकेट्स को हम किस तरीके से जोड़ रहे हैं। मेनी टाइम्स क्या होता है कि हमारा जो फैक्ट रहेगा, तो फैक्ट विल नॉट बी अ सिंगल सेंटेंस। मेनी टाइम्स मल्टीपल सेंटेंसेस मिलके हमारा फैक्ट बनता है। मल्टीपल सेंटेंसेस बोलेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंगल सेंटेंस को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो सिंगल सेंटेंस इस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस के लिए हम प्रेडिकेट लॉजिक में फैक्ट को तो रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे, तो ये मल्टीपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिव्स लगेंगे।
So connective is the next basic element, that is the fifth one. Then we have six, that is what equality. Many times हमको facts को equality के साथ जोड़ना पड़ेगा. And then we having a last basic element, that is the seventh one, which is called as quantifier. And this is what a most important thing in a first order logic. So particularly whenever we are representing the fact with the help of first order logic or a predicate logic, we have to use two types of quantifiers. For all quantifier, and then there exists quantifier. So for all की जब हम बात करेंगे, means we are talking about each and every instance, and existential quantifier का मतलब होता है कि उस सेट में कोई एटलीस्ट वन इंस्टेंस होना चाहिए. तो इस तरह के इंफॉर्मेशन अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस तरह के हम 7 बेसिक एलिमेंट्स यूज करेंगे. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमिक सेंटेंसेस. अब ऑटोमिक सेंटेंस का मतलब क्या है? मेनी टाइम्स प्रेडिकेट कैलकुलस के थ्रू या फिर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के थ्रू जनरली हम फैक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे सेंटेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एटॉमिक सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब एटॉमिक सेंटेंसेस का मतलब क्या है? तो एटॉमिक सेंटेंसेस आर द मोस्ट बेसिक सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. बिल्कुल बेसिक सेंटेंस रहेगा, इसको आगे चल के हम डिवाइड नहीं कर सकते. दिस सेंटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम अ प्रेडिकेट सिंबल followed by parenthesis with the sequence of terms. We can represent the atomic sentences as predicate followed by term 1 followed comma term 2 comma term n. अब जनरली जैसे हमारे पास फैक्ट है, मुकेश एंड अनिल आर द ब्रदर्स. पहला हमने एग्जांपल लिया है, फैक्ट दिया है, मुकेश एंड अनिल आर ब्रदर्स. तो मुकेश एंड अनिल आर ब्रदर, ये सेंटेंस को हम एटॉमिक सेंटेंस कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो ब्रदर नाम का एक प्रेडिकेट हमको दिख रहा है, तो दैट इज व्हाट वी हैव रिप्रेजेंटेड. लेकिन ब्रदर्स तो है, लेकिन कौन कौन है? तो ब्रदर्स के ब्रदर्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग टू एट्रीब्यूट्स, और दो एट्रीब्यूट्स है, मुकेश और अनिल के बीच में ब्रदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती. तो ब्रदर ओपनिंग पैरेंथेसिस मुकेश कॉमा अनिल क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इस तरीके से इस पर्टिकुलर फैक्ट को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो ब्रदर जनरली हो गया हमारा प्रेडिकेट, और मुकेश और अनिल वो वाले एंटिटीज हो गए जिनके बीच में ब्रदर नाम की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. या फिर सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, तो सेकंड एग्जांपल है टॉमी इज अ डॉग. तो टॉमी इज अ डॉग में कोई तो भी डॉग है, इस तरह के प्रेडिकेट की हम बात करें, तो दैट्स व्हाई हियर प्रेडिकेट विल बी अ डॉग. बट हु इज डॉग? वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉमी. तो टॉमी इज अ डॉग, इस पर्टिकुलर फैक्ट को डॉग टॉमी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो जनरली ये दोनों सेंटेंसेस की बात करेंगे या दोनों फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो दोनों फैक्ट्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते. तो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज एटॉमिक सेंटेंसेस. नाउ वी हैव टू गो फॉर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब किसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब कहेंगे? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर मेड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव. जनरली हमारा फैक्ट इस तरीके से दिया है कि जहाँ पे मल्टीपल एटॉमिक सेंटेंसेस है, तो मल्टीपल एटॉमिक सेंटेंसेस को कनेक्टिव्स के थ्रू अगर जोड़ते हैं, तो देन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अगर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करना है, किसी स्टेटमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो दो चीजें हमें वहां लिखनी पड़ेंगी. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए सब्जेक्ट एंड सेकंड इज ए प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है? तो subject is the main part of the statement, whereas predicate can be defined as a relation which binds two items together in a statement. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि टॉमी इज अ डॉग. तो टॉमी इज अ डॉग में टॉमी को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, जबकि प्रेडिकेट क्या होगा हमारा? डॉग. या मुकेश एंड अनिल आर ब्रदर्स, तो ब्रदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, तो ब्रदर को जनरली हम यहाँ कह सकते हैं प्रेडिकेट, जबकि सब्जेक्ट कौन रहेंगे? मुकेश एंड अनिल. सिमिलरली हियर we have one fact दिया है x is an integer. अब x is an integer में हमारा प्रेडिकेट क्या रहेगा? तो यहाँ प्रेडिकेट बात कर रहे हैं हम इंटीजर की, तो दैट्स व्हाई इंटीजर विल बी द प्रेडिकेट, जबकि सब्जेक्ट कौन होना चाहिए हमारा? x. एंड देयरफॉर हियर यू कैन सी x is a subject and is an integer means integer जो है that is what treated as a predicate. तो जनरली इस तरह के काफी सारे एटॉमिक सेंटेंसेस अगर हम कनेक्टिव्स के थ्रू जोड़ेंगे, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस क्वांटिफायर्स इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. तो पर्टिकुलरली whenever we have to represent the fact with the help of predicate logic or a first order logic,
तो वी हैव टू यूज टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। पहला जो क्वांटिफायर होता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो पहले समझ लेते हैं कि क्वांटिफायर क्या है। तो अ क्वांटिफायर इज अ लैंग्वेज एलिमेंट व्हिच जनरेट्स क्वांटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अब यहाँ पे हम क्वांटिफाई करने की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स ने एक पूरा सेट दिया है, तो उस सेट में से ऐसे कितने एलिमेंट्स है जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, हाउ मेनी एंटिटीज आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो इस काउंट को हम आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, इसको हम क्वांटिफाई करने की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्वांटिफिकेशन। अब वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में से सारे के सारे एंटिटीज अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। Getting it? So this is what the meaning of a quantification. So these are the quantifiers are the symbols that permits to determine or the identify the range and scope of the variable in the logical expression. There are two types of quantifier. First quantifier is called as universal quantifier and second quantifier is called as existential quantifier. अब universal quantifier है क्या? तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम सारे के सारे एंटिटीज के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, वेयर एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एटलीस्ट एक तो भी एंटिटी उस तरह की होनी चाहिए, इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो देन वी हैव टू गो फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो मेनी टाइम्स अगर आपको फैक्ट दिए हुए हैं और उस फैक्ट में अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं फॉर ऑल, एवरीवन, एवरीथिंग, देन वी हैव टू गो फॉर यूसेज ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, वेयर एज फॉर सम और एटलीस्ट वन, इस तरह की चीजें अगर दी है तो देन वी हैव टू गो फॉर एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज अ सिंबल ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच स्पेसिफाइज दैट स्टेटमेंट विद इन its range is true for everything or every instance of a particular thing। यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर सारे के सारे एंटिटीज उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, मींस दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल द इंस्टेंसेस फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अगर इस तरह का मैकेनिज्म है तो देन वी हैव टू यूज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फॉर ऑल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये particular symbol, this is what called as for all और which generally resembles an inverted key। तो एक को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो फिर इस तरह का सिंबल बनेगा और इस पर्टिकुलर क्वांटिफिकेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ऑल के लिए ए और ए को उल्टा कर दिया तो दैट इट विल बिकम यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो प्लीज नोट दैट अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर वी यूज इम्प्लीकेशन। तो जनरली अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे तो एवरी टाइम वी हैव टू यूज द इम्प्लीकेशन। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया और हमने इम्प्लीकेशन यूज नहीं किया। जब जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे वी हैव टू यूज इम्प्लीकेशन सिंबल। एंड इफ x इज अ वेरिएबल देन फॉर ऑल x इज रीड एज फॉर ऑल x या फिर इसको हम फॉर ईच x या फिर फॉर एवरी x इस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है ऑल मैन ड्रिंक कॉफी, सब लोग कॉफी पीते हैं, इस तरह का फैक्ट अगर हमारे पास है तो फॉर दैट हम अगर वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और एक्स वेरिएबल अगर रेफर कर रहा है टू अ इंडिविजुअल मैन, देन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो सपोज ये अगर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में हमारे पास काफी सारे मेन्स है, x1 इज अ मैन, x2 इज अ मैन, x3 इज अ मैन अप टू xn मैन। तो एक मैन हमारा क्लास है विच रिप्रेजेंट द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स और इसमें x1 x2 अप टू xn आर द वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन क्लास, यानी n पीपल्स की हम बात कर रहे हैं और ये n पीपल के लिए अभी हमें प्रॉपर्टी ट्रू कराना है। तो जैसे x1 ड्रिंक्स कॉफी, तो ड्रिंक कॉफी दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर फर्स्ट इंस्टेंस एंड drink coffee is true for second instance also and drink coffee this particular property is true for third instance also। और यही वाली प्रॉपर्टी अगर सारे के सारे इंस्टेंसेस के लिए अगर ट्रू हो रही है तो देन वी कैन से दैट ऑल एक्स ड्रिंक्स कॉफी। तो ऑल एक्स मींस x1 x2 अप टू xn, सभी के सभी लोग कॉफी पीते हैं और इसी को अगर हमें
फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में अगर इंडिकेट कराना है तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में इंडिकेट कराते वक्त हम इस तरीके से लिखेंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऑल मैन ड्रिंक कॉफी, इसको अगर हमें इंडिकेट कराना है तो हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज अ मैन देन इट इंप्लाइज दैट एक्स ड्रिंक कॉफी, यानी हर कोई एक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल एक्स, अगर एक्स मैन है तो फिर एक्स कॉफी पीता है। गेटिंग इट? तो यहाँ देखिए हमने फॉर ऑल एक्स इस तरह का यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया है। फॉर ऑल एक्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स, लेकिन एक्स है सारे के सारे एक्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द वेरिएबल्स, और एक्स अगर मैन है देन इट इंप्लाइज दैट एक्स ड्रिंक्स कॉफी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब जब हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया है हमने इम्प्लीकेशन सिंबल यूज किया है। तो इसका मीनिंग है देयर आर ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ मैन हु ड्रिंक कॉफी, यानी अगर कोई एक्स मैन है तो डेफिनेटली उसने कॉफी पीना है, और इसी का मतलब क्या होगा, ऑल मेन ड्रिंक कॉफी। तो जनरली अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी सारे के सारे इंस्टेंसेस के लिए अगर ट्रू है तो उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते हुए हमेशा हम इम्प्लीकेशन सिंबल यूज करेंगे। तो दिस इज अबाउट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट क्वांटिफायर, और नेक्स्ट क्वांटिफायर इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या इंडिकेट करता है? तो existential quantifier are the type of quantifier which express that the statement within its scope is true for at least one instance of something। अभी सारे के सारे इंस्टेंसेस की हम बात नहीं कर रहे, कम से कम एक इंस्टेंस के लिए तो भी वो प्रॉपर्टी फुलफिल होना चाहिए। इस चीज को अगर हमें इंडिकेट कराना है तो देन वी हैव टू यूज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो जनरली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज डिनोटेड बाय लॉजिकल ऑपरेटर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर सिंबल को कहेंगे हम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन को जनरली रिप्रेजेंट करते वक्त हम इन्वर्टेड ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई स्टैंड फॉर एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन एग्जिस्ट करना चाहिए, इसलिए हम रिवर्स वाला ये यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए रिवर्स में ये, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए हम रिवर्स में ई यूज करते हैं। तो व्हेन existential quantifier is used with a predicate variable, then it is called as existential quantifier। and here we have to note that existential quantifier जब जब हम यूज करेंगे हमें कंजंक्शन सिंबल जो यूज करना पड़ेगा दैट विल बी दैट। जैसे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ में सिंबल जो यूज किया था कंजंक्शन सिंबल, दैट वाज इम्प्लीकेशन। वैसे ही एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ हमें जो सिंबल यूज करना पड़ेगा दैट विल बी द कन्वेंशन सिंबल एंड। यहाँ पे हम एंड सिंबल यूज करेंगे, और जब कभी भी हमें एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ किसी फैक्ट को लिखना है तो उस फैक्ट को हम इस तरह से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट इन ब्रैकेट एक्स। तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स या फॉर सम एक्स और फॉर एटलीस्ट वन एक्स, इस तरह के कोई भी फैक्ट्स अगर हमारे पास आते हैं तो उनको जनरली देयर एग्जिस्ट एक्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी चीज को हम समझेंगे विथ वन एग्जांपल। तो हियर वी हैव एग्जांपल, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो फैक्ट दिया है सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी इंटेलिजेंसी, एंड इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी बॉयज के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, और बॉयज के ऊपर अप्लाई करते हो सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, इस पर्टिकुलर फैक्ट को अगर हमें ट्रू कराना है तो कम से कम एक तो भी बाय ऐसा होना चाहिए जो इंटेलिजेंट है, देन वी कैन से दैट सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कनेक्टिंग वन वेरिएबल x, और x जनरली इंडिकेट कर रहा है एक इंडिविजुअल बॉय को। तो देन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। तो यहाँ पे x1 x2 x3 अप टू x1 इंडिकेट कर रहे हैं इंडिविजुअल बॉय को, एंड देयरफॉर हियर वी हैव अ क्लास बॉय जिसमें काफी सारे बॉयज है। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इंटेलिजेंसी मैकेनिज्म को चेक करना है x1 के लिए, देन x2 के लिए, देन x3 के लिए, देन xn के लिए। एटलीस्ट एक के लिए भी अगर ये कंडीशन ट्रू आ रही तो देन वी कैन से दैट सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू चेक वेदर x1 इज इंटेलिजेंट। अगर x1 नहीं है तो भी चल जाएगा, देन व्हाट वी हैव टू डू और। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम और यूज कर रहे हैं, इससे पहले हम एंड यूज कर रहे थे क्योंकि सारे के सारे के लिए कंडीशन ट्रू होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट एक के लिए भी कंडीशन ट्रू आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू चेक आइदर x1 इज इंटेलिजेंट और x2 इज इंटेलिजेंट और x3 इंटेलिजेंट और x1 इज इंटेलिजेंट। तो x1 x2 x3 अप टू xn सभी में से कोई एक भी अगर इंटेलिजेंट रह जाएगा तो सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, इस पर्टिकुलर फैक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इन शॉर्ट हैंड
by using predicate calculus we can write it as there exists at least one boy such a way that boy is intelligent. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हमने क्वांटिफायर यूज किया देयर एग्जिस्ट, तो फिर हमने सिंबल जो यूज किया है कनेक्टिव सिंबल, दैट इज व्हाट है, एंड दैट्स व्हाई जब जब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे हमें कनेक्टिव जो यूज करना है दैट विल बी द एंड, लेकिन जब जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे एट दैट टाइम वी हैव टू यूज कनेक्टिव एज इम्प्लीकेशन. तो दिस पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर. एंड देयरफॉर इस तरह से अगर फैक्ट को अगर हमने लिखा है तो दिस फैक्ट कैन बी रीड एज देयर आर सम एक्स वेयर एक्स इज अ बॉय एंड हु इज इंटेलिजेंट. So now we have to go for free and bound variables. So there are two types of variables in predicate logic. पहला जो वेरिएबल है that is what called as a free variable. तो किसी वेरिएबल को फ्री वेरिएबल कब कहेंगे? The variable is said to be free variable in a formula if it occurs outside the scope of the quantifier. तो अगर क्वांटिफायर के स्कोप के बाहर कोई वेरिएबल है तो उसको हम फ्री वेरिएबल कह सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच वे दैट प्रेडिकेट पी इज ट्रू फॉर एक्स वाई एंड जेड. तो अभी यहाँ पे हमने क्वांटिफिकेशन किसके लिए लगाया? एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वी हैव अप्लाइड फॉर द वेरिएबल वाई, वेयर एज यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन इज अप्लाइड फॉर द वेरिएबल एक्स एंड प्रेडिकेट इज अप्लाइड ओवर एक्स वाई एंड जेड. बट हमें चेक करना है प्रेडिकेट किसके लिए लगाया, वो चेक नहीं करना है. हमें चेक करना है कि जितने वेरिएबल्स हमारे पास है उनमें से क्वांटिफिकेशन किसके किसके लिए हमने अप्लाई किया. तो x के लिए हमने क्वांटिफिकेशन अप्लाई किया और y के लिए हमने क्वांटिफिकेशन अप्लाई किया. तो थ्री वेरिएबल्स वी हैव x y एंड z. अमंग दैट x एंड y आर क्वांटिफाइड, वेयर एज z क्वांटिफाइड है क्या? नहीं. तो ऐसा वेरिएबल जो क्वांटिफिकेशन के रेंज की बाहर है, क्वांटिफिकेशन के रेंज के बाहर कौन सा वेरिएबल है? z, एंड दैट्स व्हाई z इज कॉल्ड एज अ फ्री वेरिएबल. नाउ बाउंडेड वेरिएबल. A variable is said to be bound variable in a formula if it occurs within the scope of a quantifier. तो अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जो वेरिएबल क्वांटिफायर के स्कोप में अगर आ रहा है तो देन वी कैन कॉल इट एट अ बाउंडेड वेरिएबल. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस एग्जांपल में कि भले ही प्रेडिकेट हमने x y z के ऊपर लगाया था लेकिन क्वांटिफिकेशन x और y के ऊपर लगाया था. तो देयरफॉर x एंड y वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज बाउंडेड वेरिएबल, जबकि z को हम फ्री वेरिएबल कह सकते हैं. और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल y प्रेडिकेट ax एंड प्रेडिकेट by. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स हमारे पास है x एंड y और दोनों के ऊपर हमने क्वांटिफिकेशन यहाँ पे अप्लाई करके रखा है एंड देयरफॉर x एंड y बोथ आर द बाउंडेड वेरिएबल. So this is about free variable and a bounded variable. And now we have some important points which we have to remember. तो important points हम discuss कर लेते हैं. पहला, the main connective for universal quantifier is a implication. तो जब जब हम universal quantifier यूज करेंगे, connective हमें जो यूज करना है that will be the implication. Second, the main connective for existential quantifier is and. जब जब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे हमें एंड यूज करना पड़ेगा. देन अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई इज सिमिलर टू फॉर ऑल वाई एंड फॉर ऑल एक्स. तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. फॉर ऑल एक्स पहले लिखो या फॉर ऑल वाई पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. देन इन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई इज सिमिलर टू देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स. तो जनरली जब हम फैक्ट्स प्रेडिकेट कैलकुलस में या प्रेडिकेट लॉजिक में आगे चल के लिखेंगे तो क्वांटिफिकेशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्वांटिफिकेशन अप्लाई करते वक्त अलग अलग वेरिएबल्स पे अगर क्वांटिफिकेशन यूज किए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको किस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये वाली चीज हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए यहाँ पे स्टडी की है. तो वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई इज नॉट सिमिलर टू फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स. तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर दोनों का ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते. इफ बोथ आर यूनिवर्सल क्वांटिफायर और बोथ आर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देन डजंट मैटर इफ वी विल चेंज देयर ऑर्डर. लेकिन अगर एक एग्जिस्टेंशियल है और एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर अगर है तो उनका ऑर्डरिंग हम चेंज नहीं कर सकते. तो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर. एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर सम एग्जांपल्स टू represent the fact by using first order logic.
here we have to understand the concept of how to use the quantifier. तो पहला फैक्ट हमारा है all birds fly. जरा ध्यान दीजिएगा, all birds fly इसका मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करो कि क्वांटिफायर कौन सा लगेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल एंड देयरफॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर विल रिक्वायर ओवर हियर. सेकंड, प्रेडिकेट कौन सा है? प्रेडिकेट है यहाँ पे फ्लाई. क्यों? क्योंकि हम फ्लाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन फ्लाई कर रहा है? बर्ड्स. एंड देयरफॉर अगर कोई बर्ड है तो फिर वो डेफिनेटली फ्लाई करेगा. तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज अ बर्ड देन एक्स कैन फ्लाई. एंड देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा? जो कोई भी एक्स रहेगा वो डेफिनेटली फ्लाई करेगा. तो ऐसे सारे के सारे एक्स की हम बात कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई इट विल बी फॉर ऑल एक्स. देन वी हैव नेक्स्ट फैक्ट, एवरी मैन रिस्पेक्ट हिज पेरेंट. Every man means we are talking about all and therefore universal quantifier will require. Man respect his parent. तो यहाँ पे man respect parent, तो respect हमारा प्रेडिकेट बनेगा और रिस्पेक्ट मैकेनिज्म किसके बीच हो रही है? मैन और पेरेंट के बीच हो रही है. एंड दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर फैक्ट को हम लिखेंगे इस तरीके से, फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज अ मैन देन एक्स रिस्पेक्ट पेरेंट. Getting it? Then we have next fact. So here we have a fact. Some boys play cricket. We are talking about some boys. और some boys के बारे में अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात यहाँ पे करेंगे और हमारा प्रेडिकेट क्या रहेगा? प्रेडिकेट रहेगा प्ले. और प्ले कौन कर रहा है? बॉय. एंड दैट्स व्हाई इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज बॉयज then x play cricket. Then we have next fact, not all students like both mathematics and science. Not all. देखिए not all यहाँ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात किसकी हो रही है? फिर से all की बात हो रही है, लेकिन all का निगेशन. और all का निगेशन अगर है इसका मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उसका निगेशन अप्लाई करना है. एंड देयरफॉर दिस फैक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉर all not x student x then likes mathematics and likes science. So if somebody is a student then it implies that it likes mathematics and it likes science. क्योंकि दोनों एक साथ लाइक करने की हम बात कर रहे हैं. therefore here will be the end. लेकिन ये पूरे सेंटेंस का निगेशन हमें लेना है, that's why not. So this is all about how to represent the fact by using predicate calculus or first order logic in artificial intelligence. Thank you.